The nomadic and denotified tribes used to travel from one village to another for their traditional occupations. They had no identity proofs, no permanent address. For them, if their movement stopped, their life would come to a halt. These communities make up about 12 to 15% of India's total population. In Gujarat alone, their population is estimated to be around 6 million. Everyone has their own village, but they don't. The villagers allow them to stay as long as they need their services, but never fully accept them socially, meaning they are not given permanent shelter in the village. That's why Vicharta Samuday Samarthan Manch, VSSM, took a pledge to work towards giving these communities identity, homes, and respectful inclusion in society. In 2015 and 2017, floods devastated parts of North Gujarat. Seeing such massive water accumulation raised questions about groundwater levels. The answers were shocking. In some places, water levels were at 800 to 1200 feet deep, and in others, the aquifers were completely drained out. Life without water is impossible. To eliminate world hunger, the UN has suggested increasing agricultural output by 55%. But none of this will be possible without access to life-giving fresh water. That's why we began working on water conservation. For us, water is more than survival. It is a medium to speak about the rights and dignity of nomadic tribes and deprived communities, and to bring their voices into the conversation with villagers. And groundwater is declining at an average of 6 meters per year. The water that is being drawn is not being recharged at the same rate. To address this crisis, we undertook rainwater harvesting projects, including deepening lakes and recharging unused borewells in 5 districts of North Gujarat. We call lakes the arteries of the earth. They are the heart of every village. As long as they exist, the land stays alive. In earlier times, lakes were deepened every year, allowing them to collect rainwater and recharge groundwater. But in the last 35 to 40 years, with the rise of borewell technology, people have forgotten about lakes. Borewells enabled excessive water extraction, causing the groundwater level to be depleted. Since 2015, we have been working with villagers and our volunteers to deepen lakes. So far, we have deepened 380 lakes. We call these lakes Jal Mandir, water temples. During monsoon and with Narmada Canal water, these Jal Mandirs started filling up. Groundwater started recharging. When these water temples swelled up, it felt as if even nature had tears of joy in its eyes, and the farmers were happy too. Along with lakes, we also began planting and nurturing trees, as trees are necessary for bringing in the rain. They are also the solution to global warming. In the water-scarce areas of North Gujarat, we planted 1.8 million trees, that is 18 lakhs trees with participation from the villagers. We employ paid caretakers for 3 years to ensure the survival of these trees. Because of this approach, 85% of the trees have survived and are thriving in 280 village forests, which we call Vriksh Mandirs, temples of trees. In the coming 10 years, we have pledged to plant 10 millions, that is 1 crore trees, and create 1,000 Jal Mandirs, ensuring a secure future for the next generation. Shubham Bhavatu. May all be auspicious. That was totally inspiring. And of course, that is our next agenda for tonight. But before we indulge into hearing directly from our keynote speaker, there is a line by Faiz Ahmad Faiz,
that says, और ए दोस्तों अपने गुलदानों में पानी भर लो. Fill your vases with water, for spring is here. It is a line from the poem The Rebel by Faiz Ahmad Faiz, who was a poet in Urdu between 1911 to 1984. It is translated in English by Agha Shahid Ali. And what I want you to remember as I welcome the keynote speaker, who's a hero for us, let's put our hands together and hear her own story in her own words. We welcome Mittal Patel. सॉरी इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ इसके लिए, पर शायद मैं मानती हूँ कि दिल से बात करने वाली हूँ, तो इंग्लिश अगर इधर आएगा नहीं आएगा तो भी मैं मानती हूँ कि समझ में आएगा ये सारी चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइका का बहुत बड़ा मतलब धन्यवाद करना चाहूँगी. गुजरात में जो काम कर रहे हैं, वैसे पूरा यहाँ ट्रैवल कर रहे थे तब वो फ्लाइट में दिखाता है कि गुजरात से लेके वो जापान और पता नहीं कौन कौन से कितने माइल्स ये सब, तो छोटा सा एरिया गुजरात का जहाँ पे हम काम कर रहे थे उसको आज इतने बड़े फलक पे आपने वैश्विक मंच दिया, इसलिए आइका का मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ. मेरी जर्नी के बारे में क्योंकि काफ़ी चीज़ें बोली गई इसके अंदर, पर मुझे मेरे बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी, वो इसीलिए क्योंकि हर कोई काम शुरू करता है तब बहुत सारी स्ट्रगल होती है. ये जो कुछ भी देखा वो 17, 18, 20 साल के बाद ये सारी चीज़ें हुई है. 2004 जर्नलिज़म पढ़ रही थी और उसी दौरान एक फेलोशिप मुझे मिली जो माइग्रेशन करके जो लेबरर्स है वो अपने गांव छोड़ के अलग अलग फार्म में काम करने के लिए आते हैं वहाँ पे. तो शुगर केन वर्कर्स के साथ मैंने स्टडी करना डिसाइड किया, और थोड़ा हम जैसे लोग ना थोड़े सीधा साधा मतलब ऐसे सीधे रास्ते से चलने वाले हम नहीं होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा और सब देखना होता है. तो उस वक्त ये मन में आया कि मैं शुगर केन वर्कर्स जो साउथ गुजरात में बाहर से आते हैं ट्राइबल एरिया से, उनके बारे में मैं स्टडी करूँगी. पर स्टडी बुक्स वगैरह पढ़ के या फिर उनके इंटरव्यू लेके नहीं, पर मैं वहाँ जाके रुक के उनके साथ उनकी सिचुएशन समझ के फिर करना चाहूँगी. और चूँकि मेरे फादर मदर दोनों फार्मिंग के साथ बड़े फार्मर है, तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते थे, तो शायद इसकी वजह से वो एक मुद्दा मुझे लगा कि इनके साथ मैं काम करना चाहूँगी. और जब मैं 1.5 महीना वो साउथ गुजरात का जो पार्ट है जहाँ पे शुगर केन वर्कर्स आते हैं, मैंने उनके साथ डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे जाऊँगी. मैं पहले ही दिन मैं जिस सेटलमेंट में गई, सूरत के नज़दीक का एक गांव था तड़केश्वर करके, और गांव से काफ़ी दूर ये सारे जो मजदूर है उनको आते थे, और वो ब्लू वाले प्लास्टिक आपने देखे होंगे इतने, जहाँ पे बंदा खड़ा भी नहीं रह सकता. तो मैंने दूर से इन लोगों को देखा, तो मैंने पढ़ा था इनके बारे में और इसीलिए इनकी स्टडी करना डिसाइड किया था. तो मैंने जो पढ़ा था इसमें ये टेंट में रहने वाले लोग थे, ये और मैंने जो सोचा था ये दोनों मैच नहीं हो रहा था. मैं जो पिक्चर देख रही थी उनमें, पर आई थी, मैंने वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर जो इनको लेके आता था, मैंने उनको पूछा और बताया अपना इंट्रोडक्शन देते हो कि मैं जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ और मुझे इनके बारे में स्टडी करना है, उनकी सिचुएशन के बारे में. उसको लगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और बहुत कुछ गलत लिख दूँगी. उसने कहा यहाँ तेरा कोई ज़रूरत नहीं, निकलो यहाँ से. शाम का टाइम था, नवंबर 2004, ठंड बहुत थी. मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ, और रहना तो नहीं था, मैंने सोच के आई थी, उससे ये पिक्चर मैच नहीं हो रहा था, तो जाऊँ ना जाऊँ ये दुविधा हो रही थी. ऐसे में एक बंदा अपना छोटा सा 8-9 महीने का बच्चा कमर में लेके वो दौड़ के आ रहा था, वो रो रहा था, खून निकल रहा था, बच्चे के ऊपर बहुत सारे कांटे लगे हुए थे. तो मैं खड़ी रही वहाँ पे और पूछा कि क्या हुआ. वो ट्राइबल लैंग्वेज में रोते रोते बहुत कुछ बोल रहा था. पता चला कि वो खेत से उसकी वाइफ, ये बच्चे तीनों आ रहे थे, कोई बाइक पे 2 जने आए और उसकी वाइफ को उठा के ले गए, और वाइफ को बचाने में जो बच्चा था उसको वो झाड़ियों में डाल दिया, इसकी वजह से कांटे लगे हुए थे और ये सारी चीज़ें.
मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे कभी डर नहीं लगता, मतलब जो कुछ भी है ऐसा है कि हो जाएगा। डरने की एज अ गर्ल या फिर मैं लड़की हूँ इसीलिए ये चीज़ हो ना हो, ऐसा कभी मतलब मेरी अपब्रिंगिंग कभी उस टाइप की हुई ही नहीं थी। पर वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा क्योंकि उसी रास्ते से मैं आधे घंटे पहले आई थी। वापस तो जाना नहीं था, मुझे लगा कि पुलिस आएगी, जैसे हिंदी फिल्मों में बताते हैं, भले आधे घंटे या 1 घंटा लेट पर आती तो है ऐसे। पर यहाँ पे पुलिस आई ही नहीं, किसी ने कॉल भी नहीं किया। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा अगर पुलिस को बुलाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जो मुकादम कॉन्ट्रैक्टर है वो हमें काम पे नहीं लाएगा। फिर मैंने पूछा कि उस औरत का क्या हुआ, क्या होगा, तो उसने कहा कि 2-3 दिन के बाद वो आ जाएगी। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं गुजरात की बात कर रही हूँ, जब मैं ये बात बाहर लोगों को बताती हूँ तो लोग बिलीव नहीं करते हैं, पर ये मेरे सामने हुई वाली ये घटना। वापस तो जाना नहीं था, मुकादम जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कहा कि यहाँ पे तुझे रहना नहीं है, तू जा जहाँ जाना है। ऐसे वो ब्लू वाले प्लास्टिक जहाँ पे मैं उनके बीच में जा रही थी, कोई मुझे आज रात के लिए सोने के लिए जगह दे दे उसके लिए। एक औरत खाना बना रही थी, मैंने उसके पास जाके पूछा और कहा कि मैं बाहर से आई हूँ और अभी वापस नहीं जा सकती, आप मुझे अपने ये जो झोंपड़ा है उसमें रहने के लिए जगह दोगे आज की रात के लिए। और उसने इतने प्यार से बोला कि सो जाना है ऐसे। मुझे हमेशा ये होता है कि मेरे घर पे अगर कोई कामदार लेडी आके ऐसे दरवाज़ा नॉक करेगी और बोलेगी कि आज की रात मुझे आपके घर में सोना है, सोने दोगे, शायद मैं ना बोल देती। पर यहाँ पे बहुत दिलदार, मैं ये मानती हूँ कि पूरी रात मैं उसके पास में सोई। कुछ बिछाने के लिए नहीं था, वो प्लास्टिक की थैली, 7-8 जोड़ी कपड़े ले गई थी, वो पूरे पहन लिए थे क्योंकि ठंड बहुत थी। मुझे था कि वो लोग मुझे बिछाने के लिए कुछ और ओढ़ने के लिए कुछ देंगे, पर उनके पास ही कुछ नहीं था। रात भर ये चला कि भाई सुबह उठेंगे और भाग जाएंगे, मुझे ये रिसर्च विसर्च का काम नहीं करना है। और डर भी लग रहा था। पर हमारे गुजरात में और हमारे हर स्टेट में प्रभातिया जो सुबह में गाते हैं, वो प्रभातिया में गुजराती एक प्रभातिया है जिसमें ये आता है कि पहले पहरे 4 प्रहर होते हैं रात के। तो पहला प्रहर होता है उसमें सब कोई जागता है, हर कोई, हम सब जागते हैं। दूसरे प्रहर में भोगी जागते हैं ऐसे। तीसरे प्रहर में तस्कर जो चोरी करने वाले लोग हैं वो जागते हैं। और चौथे प्रहरे जागे जोगी रे, माने जो संत पुरुष है जिसको अध्यात्म, इसलिए हम सबको बोला जाता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। वो शायद उस वक्त नेगेटिव जितनी एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, इसकी वजह से हमें शायद ये बात आती है कि आप जो पढ़ोगे वो याद रहेगा। मेरा भी धीरे धीरे प्रहर जा रहा था, नींद तो खैर आनी ही नहीं थी। पर चौथा प्रहर, उस वक्त एकदम से मन में ख्याल आया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पे आई उसी दिन ऐसी घटना क्यों घटी, मेरे साथ भी हो सकता था, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ। तो मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगा कि ईश्वर शायद मुझे कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगी तो वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिलेगी, और वो मेरा ध्यान रख रहा है, इसलिए मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझे क्या दिखाना चाहता है। मैं 1.5 महीना उन्हीं के बीच ऐसे ही झोपड़ों में रही, रोड साइड पे सोई हुई, गंदा पानी पिया है, गंदे पानी में नहाया है। मैंने भीख मांग के 3 दिन तक, खाना नहीं मिला था तो भीख मांग के खाना भी खाया। पर वो 1.5 महीना, ये आयका का बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है, बच्चों को जो आप भेजते हो वहाँ पे, तो ये राजा रजवाड़ाओं में देशाटन की एक प्रक्रिया होती थी। जब नया राज्याभिषेक उसका होगा उससे पहले उसको भेजा जाता था कि तू राज्य में जा और तू देख अपने राज्य की प्रजा कैसे रहती है। तो शायद मैं मानती हूँ कि मेरा देशाटन वो 1.5 महीने में हुआ, और आज की मित्तल का जन्म भी वहीं से हुआ। और उस वक्त पहली दफ़ा समझ में आया कि भूख लगे और हमारे पास खाना ना हो वो क्या होता है। गंदा पानी जो केमिकल वाला फैक्ट्रीज़ वाले डाल देते हैं नदियाँ में, या फिर लोग बोलते हैं कि हमारी ज़मीन में से कोका कोला निकलता है, तो वो कोका कोला निकलता है वो कैसे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आई। रोड साइड पे सोना, एक औरत होना और मेरे पास घर ना होना, खुले में नहाना, और इनसिक्योरिटी एज ए वीमेन क्या होती है, वो सब चीज़ वहाँ पे मैंने फील किया। और फिर लगा कि मैं वैसे अहमदाबाद आई थी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, आईएएस अफसर बनना था और अपने पाँव पे खड़े रहना था। पर बहुत सारे अफसर को मैं मिली और सबके पास, इवन पॉलिटिशियंस को भी मिली कि भाई इनकी हालत ऐसी क्यों है, पर मुझे किसी के पास से वो सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिला। सबने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी ऐसी है। तो मुझे लगा कि पॉलिसी बनाने वाले कौन है, हम ही लोग हैं, तो फिर क्यों ये सारी चीज़ें बदल नहीं सकती है। और फिर मुझे लगा कि
अफसर बन के अगर ऐसे आंसर मैं करने वाली हूँ तो मुझे नहीं बनना है अफसर। फिर क्या वो एक दिमाग में आया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी ज्वाइन किया, एज ए जर्नलिज्म मैं पढ़ रही थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी तो वो भी ज्वाइन किया। पर मैंने देखा कि वहाँ पे भी ये जो ऐसे इश्यूज़ हैं उनको वहाँ पे भी इतना स्थान नहीं मिलता, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट देने वाले नहीं है, ना ही वो रीडर है इनके न्यूज़पेपर के। सो फिर हुआ कि क्या, और ऐसे में एक डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जनपद, वहाँ पे मैं एज अ वॉलंटियर जाती थी। वहाँ पे बात आई कि भाई हम नॉमेडिक ट्राइब्स के लिए काम करेंगे। आइडिया नहीं था कि नॉमेड्स क्या है, ये स्टोरी वाटर तक कैसे जाती है तो वो हमें सुनना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। और नॉमेडिक ट्राइब्स आपने देखा कि जो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे भारत की 12 से 15% पॉपुलेशन और करीब 1200 जितनी कम्युनिटीज़ अलग अलग, जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है, वो गुमनाम भरी जिंदगी जैसे जी रहे हैं। हमने सबने देखा है इनको। मैं बोल रही हूँ कि हिंदी फिल्मों में हमने सबको देखा है, जैसे जया भादुरी बोलती है चक्कू छुरिया तेज करा लो, ताज होटल के सामने उसका जो गाना है उन सब में, तो फिल्मों में ये सारी ट्राइब्स बहुत दिखाई गई है। पर उसके बाद उसका क्या हुआ वो किसी को पता नहीं है। और उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऐसे थे कि वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। और इसीलिए जब मैं उनके पास गई कि आपको क्या चाहिए, वैसे मैं गवर्नमेंट ऑफिस में गई थी इनके बारे में, कहाँ है ये लोग, मुझे स्टडी करना है ऐसे। तो मुझे बड़े अफसर थे वहाँ के जो क्लास 1 ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि जिनके नाम में घूमना है, विचरण है, उनको तू पते पे ढूंढ रही है, कोई एड्रेस पे ढूंढ रही है, उनको ऐसे ही तू निकल पड़ और तू ढूंढ ऐसे। बड़ी चैलेंजिंग बात थी ये, और मैंने ऐसे ही इनको ढूंढना शुरू किया। जब उनके पास में गई, उनको उनके बारे में पूछा कि भाई क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हो कि क्या आपको मिले तो आपकी लाइफ थोड़ा सुकून वाली बन जाए। किसी ने गाड़ी नहीं मांगी, किसी ने बंगला नहीं मांगा, सब ने यही कहा कि फ़ोटो वाला अगर कार्ड मिल जाए ना तो हमारी लाइफ बन जाए। अभी हम सबको थोड़ा ताजुब होगा कि फ़ोटो वाले कार्ड से लाइफ कैसे बन जाए और ये क्यों चाहिए इनको। फिर पता चला कि गांव के आउटस्कर्ट में ये परिवार रहते हैं, अपना छोटा सा पड़ाव डाल के 8-10 दिन, 15 दिन या 1-2 साल भी। कहीं पे भी चोरी चपाटी होती है तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और इनको उठा के ले जाती है। पता नहीं चलता कि मित्तल बोलती है कि मैं मित्तल हूँ, पर पुलिस में दर्ज हुआ कि भाई ये शीतल है या रूपल है। मैं बता नहीं सकती कि मैं मित्तल हूँ, मेरी माँ बोलती है, मेरा भाई, सब कोई, पर प्रूफ नहीं होता है मेरे पास। तो ये बड़ी दिक्कत थी। और आप देखो कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी ये कम्युनिटी छूट गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आज यहाँ पे आइका में आई तभी एक लड़का था जो बाबा साहब के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं काम, मतलब उनके बारे में स्टडी और काम ये सब। तो मैं बोलती हूँ कि बाबा साहब ने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पर मैं मानती हूँ कि इस कम्युनिटी के साथ हम सब ने अन्याय किया क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, ना ही कोई स्कीम बनी और ना ही 1 रुपये का बजट इस कम्युनिटी के लिए आया। तो हमारा काम वो रहा ह्यूमन राइट्स का, इन लोगों को कैसे आइडेंटिटी मिले। बहुत लंबी कहानी है वो सारी चीज़ें, पर धीरे धीरे करके वो एकदम से ना खड़े रहे। मुझे भी ऐसा हुआ कई दफ़ा कि भाग जाए, क्योंकि हर काम में ये होता है कि कहीं पे भी आप ईंट कुछ करना शुरू करो तो हम सब फल देखते हैं ना, कहाँ पहुँचेगा ये काम और इसमें से हमें क्या मिलेगा, हम जो चाहते हैं वो क्या कैसे मिलेगा। ये सब चीज़ें जब दिखना शुरू होती है तो मेहनत करना शुरू करते हैं। हमारे काम में ओनली फ्रस्ट्रेशन, 1-2-3 साल नहीं पर 12-13 साल तक फ्रस्ट्रेशन, एक चीज़ नहीं दिख रही थी और सामने पूरा पिक्चर धुंधला है और फिर भी आपको लगे रहना है। मैं मानती हूँ वो बहुत बड़ी बात है और ये हम लगे रहे और इसकी वजह से आज हमारी टोटल इंडिया का पॉपुलेशन 12 से 15% ये कम्युनिटी, गुजरात में 6 मिलियन ये कम्युनिटी, और उनके लिए काफ़ी सारी स्कीम वगैरह हमने बनाई। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में हमारे पास से सजेशन मांगे कि भाई नॉमैड्स के लिए क्या किया जा सकता है, आप पूरे भारत के नॉमैड्स के लिए आप हमें लिख के दो, और वो हमने उनको दिया और उसी आधार पे नेशनल लेवल पे एक वेलफेयर बोर्ड अभी बनाए। खैर बजट 500 करोड़ 5 साल के लिए दिया है। मैं जब उनको मिली थी तब मैंने उनको कहा था कि एक पर पर्सन चवन्नी भी नहीं आएगी, पर फिर भी कुछ नहीं है, आपने ये दिया वो बड़ी बात है, आगे हम बात और करेंगे और आप ज़्यादा पैसा दो ऐसा हम चाहते हैं। तो ये पूरे नॉमैड्स, उनकी लाइफ, और जैसे ना मैं काम मेरा शुरू हुआ, मेरी फैमिली आज यहाँ पे आई हुई है, इसके लिए भी मैं प्रकाश जी और आयका का धन्यवाद करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, उन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। घूमने वाली, मतलब सिविल सोसाइटी के लिए आप कुछ करते हो, समाज सेवा करते हो, तो बाहर बैठ के ताली बजाना सबको अच्छा लगता है, पर मेरे घर से
ऐसी बीवी जो सुबह उठ के पूछो कि कहाँ जा रहे हो और मैं बोलूँ कि मुझे पता नहीं है, बस मैं जा रही हूँ ऐसे, वापस कब आओगे, तो 2-3 दिन। तो बहुत मुश्किल वाला था, पर बहुत हडल्स वाला भी रहा वो पूरा टाइम। पर फिर भी मौलिक और मेरी बेटी दोनों ने काफ़ी सपोर्ट किया। पहला बच्चा मेरा मिसकैरेज भी हुआ, क्योंकि जब कंसीव किया तभी सबसे पहला टेंशन ये आया कि अगर मैं माँ बन जाऊंगी तो फिर मैं ये काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। इतना टेंशन हुआ कि उसकी वजह से वो मिसकैरेज हुआ। और शायद मैं बहुत सारी जगह पे ये चीज़ बहुत बोल्डली बताती हूँ, ताकि ये है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे किसी ने इस कम्युनिटी की माँ नहीं बनाया था 22-23 साल में, पर मैं खुद माँ बन गई थी उनकी। किसी ने बोला नहीं था कि तुझे ये ना बंदूक रख के कि तुझे ये करना पड़ेगा, पर मैं मानती हूँ कि शायद मैंने खुद ये सोच लिया कि ये पेन, उनका पेन मैं खुद फील कर रही थी। एक आइडेंटिटी ना होना, पुलिस एट्रोसिटी के केसेस, गांव में बसाने की बात जब आती थी कि आपके गांव में ये 25 फैमिली रह रहे हैं, इनको राशन कार्ड देना है, इनको वोटर ID कार्ड देने हैं, और पूरा विलेज एकदम से बाहर आ जाएगा और बोल देगा कि भाई ये मेरे गांव के नहीं है, निकालो यहाँ से। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी संस्कृति, आप जो हम पढ़ते हैं वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हम दोगले लोग हैं। ये वसुदेव कुटुंबकम हम बोलते हैं, पर सही मायने में वो बोलने वाली बात नहीं है, वो हमारे एक्शन में दिखना चाहिए। तो एक्शन में मैंने कहीं नहीं देखा, पर्टिकुलर नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के हिसाब से सब कोई उसको निकाल देता था कि भाई आप नहीं चाहिए मेरे गाँव में, आप निकलो यहाँ से। और उस वक्त मुझे लगा कि कौन सा ऐसा मीडियम बने कि मैं गाँव को इनके साथ जोड़ पाऊं, क्योंकि गांव जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक ये काम होना नहीं है। सरकार को हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स भी है हमारे पास कि उनको बोल सके कि आपको इनके लिए करना पड़ेगा। पर मैं गांव को कैसे बोलूं कि आपके गांव में इनको जमीन देनी है? तो ये समझ में नहीं आ रहा था। हर रोज ईश्वर से प्रार्थना होती थी कि भाई कुछ दिखा, कुछ रास्ता दिखा। और ऐसे में 2015 और 17 में फ्लड आया नॉर्थ गुजरात में, और फ्लड आया, हम रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे थे उस वक्त, और उस वक्त लोगों से पूछना शुरू किया कि यहाँ पे वाटर कंडीशन क्या है, ग्राउंड वाटर कैसी कौन सी सिचुएशन पे है। और जो चीज़ें सामने आई, 1000-1200 फुट, कहीं जगह पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं था। जैसे प्रकाश जी ने बताया, बोरवेल हमारी सुखाकारी के लिए आए, काफ़ी सहूलियत भी हुई उससे, पर लोगों मतलब हमने मैनेजमेंट हम भूल गए उसमें, और हमने पानी की हालत ख़राब कर दी। तो उस वक्त लगा कि अगर हम वाटर मैनेजमेंट का काम करते हैं, चूंकि गांव के बड़े फार्मर्स, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बोरवेल में पानी आएगा तो खेतीबाड़ी हो पाएगी। तो बड़े फार्मर्स, स्टेक होल्डर, उनके साथ बात करने का ज़रिया ये पानी बन सकता है, ये हमें लगा, और इसीलिए हमने वाटर मैनेजमेंट का काम शुरू किया। तालाबों के लिए पहले तो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि किसी को ये था ही नहीं कि तालाब, आज की लोग मुझे बोलते थे कि आउटडेटेड है तालाब, आपको तालाब क्यों करने हैं? तो जैसे मैं एक गांव में रहने वाले लोगों को समझाती थी, मेरी माँ पशुपालन करती थी, गाय भैंस हमारे यहाँ पे थी, तो मैं उनको बोलती थी कि मेरे घर के आगे मैं गैया बांध दूँ और हर रोज़ उसका दूध निकालने की कोशिश करूँ, पर गाय को घास ही ना खिलाऊँ तो वो कितने टाइम तक वो मुझे दूध देगी। सही में ऐसा हमारे वाटर मैनेजमेंट का है। तालाब हमारी पीढ़ियों ने, मतलब आज से 1000 साल, 5000 साल पहले वाटर बॉडीज़, जब मानव वसाहत यहाँ पूरी पृथ्वी पर आई, तब से तालाब हमारे लोगों ने बनाया। और आप देखेंगे कि संस्कृति जो है, मानव वसाहत, वो भी पानी जहाँ पे वो हुआ वहीं पे ही बनी। तो तालाब का बड़ा रोल था, पर बोरवेल के कारण तालाब को देखना ही लोगों ने बंद कर दिया। तो जैसे पतीले जैसा तालाब होगा तो मॉनसून का पानी आएगा, पानी नीचे जाएगा और हम बोरवेल कुएं से खेती कर पाएंगे, पर वो भूल गए। तो जैसे प्लेट जैसा तालाब बन गया था, और हमने फिर से वो तालाबों को रिवाइव करना शुरू किया। और गाँव वालों को उनकी ज़रूरत भी बनी, क्योंकि कहीं पे 800 फुट तक पानी चला गया था, तो उनको लगा कि भाई तालाब होगा तो हमें बेनिफिट होगा। तब हमने उनको बोला कि आपके गांव में रहने वाले नॉमैडिक ट्राइब्स है या फिर अन्य कोई भी गरीब फैमिली है, उनके लिए आप क्या करोगे? आपको एक बड़ी मज़ेदार वाली बात, और हमें दुख भी होता है, स्वार्थ कहाँ तक होता है। गाँव का सरपंच होगा, उसके पास अंत्योदय राशन कार्ड जिसमें बहुत सारा अनाज मिलता है, 36 kg, सरपंच एकदम सुखी संपन्न है, फिर भी उसके पास ये सारी चीज़ें होती थी। तो हमने ये तालाबों का काम उसी हिसाब, मतलब राशन कार्ड आप
रिमूव करो अपना और जो ज़रूरत वाले हैं उसको दो। तो उस हिसाब से तालाबों का काम शुरू किया और वैसे ही मैं 2 मिनट और लूँगी। तालाब के साथ मतलब खोद तो दिया पर पानी कहाँ से आएगा, तो हमें लगा अगर बड़े मात्रा में हम पेड़ लगाएंगे तो पानी आएगा और इसीलिए हमने छोटे छोटे जंगल गाँव में खड़ा करना शुरू किया। पर उसी दौरान एक और चीज़ ध्यान में आई कि भाई आप देखोगे कि बड़ी, जैसे मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो अब मैं जहाँ पे रहती हूँ उस एरिया में 20 साल पहले खेत या गौचर की वेस्टलैंड थी। वहाँ पे सांप, ये खरगोश, नेवले, बहुत सारे ऐसे प्रजाति थे जो वो रहते थे। आज सिचुएशन ये बनी है कि हमने किसी ने उनको पूछा नहीं कि तेरे घर में मैं आऊँ, हमने सीधा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें ये हक अधिकार मिल जाता है कि हम उनके घर में घुस जाएंगे और उनको खदेड़ देंगे। तो मैं मानती हूँ कि ये हमारी पूरी कुदरत या प्रकृति की बात करें तो इंसान को बहुत बुद्धि और समझ शायद भगवान ने इसीलिए दी थी कि वो अपनी पृथ्वी का ध्यान रखे। हम चौकीदार हैं, पर हम चौकीदार नहीं रहे, हम मालिक बन गए और हर जगह सब कुछ मेरा है ऐसा। और ये चीज़ हमें ध्यान में है कि अगर जंगल बनेगा तो हम इन सब जीवों को घर दे पाएंगे। जैसे हमारा मतलब ये बोला जाता है कि हमारा जीव जो है वो 84 लाख योनि 8.4 मिलियंस जितने बर्थ होते हैं उसके बाद हमें मनुष्य अवतार मिलता है। तो मैं 8.4 मिलियन जीव अलग अलग कोई इस पृथ्वी पे रहते हैं। हम अगर उनके वेलफेयर की बात करें तो आप अगर गिनोगे कि कितने जीव के वेलफेयर के लिए आप काम करते हैं, तो हम सबसे पहले इंसानों के बारे में सोचते हैं, फिर आती है गाय क्योंकि हम उसमें बहुत मानते हैं, फिर कहीं पे डॉग या फिर कुछ बर्ड्स, ये सब अगर 20-25 से ज़्यादा नहीं आएंगे, हम गिनेंगे ना तो भी, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत चीज़ है। जो पानी में रहते हैं उन सब जीवों के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, पर जो जल में, ये स्थल माने भूमि पे रहते हैं, उनके लिए हम कुछ कर पाए, तो इसीलिए जंगल का काम शुरू किया। और मुझे हमारी नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स और ये जो जंगल, जो पेड़ों में या फिर छोटे जंगल में रहने वाले अबोल जीव जो बोल नहीं पाते अपने राइट्स के बारे में, वो दोनों मुझे सेम ही लगते हैं, तो उनके लिए फिर ये जंगल खड़ा करने का काम किया। अब तक 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड ये सब दिलाया, 1900 से ज़्यादा परिवारों के घर बनाए हैं, 12,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन देके पकबर मतलब खड़ा किया है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। 600 बच्चे हमारी हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, 380 तालाब किए हैं और 1.8 मिलियन ट्रीज़ हमने लगाए हैं। ये जितना, ये आंकड़े इसीलिए बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ कि ये तो गुजराती माँ कहे छे पाशेरामा पूणी, मतलब इतना सारा बड़ी दुनिया है, उसमें से इतना छोटा सा किया हुआ है। पर एक बड़ी अच्छी कविता गुजराती में आई थिंक आप ट्रांसलेट कर पाओ तो, छोने हूँ ना कनक दीवड़ी कोड़िયું माटीનું થઈ उज्जवाड़ू कोई गृह गरीबनु तोय मारे घणुं है। એટલે सोने का दिया नहीं बनना है मुझे, पर मिट्टी का एक छोटा सा दिया बन के किसी गरीब का घर भी मैं उसमें अगर उसको प्रज्वलित कर सकती हूँ तो भी मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है, शायद वो वर्थ है। आइका ने ये प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए बहुत आभारी हूँ। और ये सम्मान के लिए जितने भी लोग इस कार्य में मतलब काफ़ी सालों से बिना पूछे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा ऐसे जो सपोर्ट करे, उन सबका ये सम्मान है। फिर से तहे दिल से आभार मानती हूँ और आप सबको गुजरात में आने के लिए, और ये पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के सब स्टेट में ये नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स है। मेरी विनती है कि हम सब उनके तरफ भी देखें। ये अनटच इश्यू है, किसी ने इनके बारे में नहीं सोचा है, ना ही उनके लिए इतना सारा काम हुआ है। तो ये मेरी विनती भी है इस प्लेटफॉर्म से कि हम सब साथ में आए, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलना शुरू करती है ना तो वहाँ पे डेफिनेटली उसका असर होता है और सरकार भी काम करना शुरू करती है। तो एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी को भी आप लिखिए एक पोस्ट कार्ड में कि भाई हमारे यहाँ पे रहते नॉमेड्स की कंडीशन क्या है और सरकार क्या कर रही है। मैं मानती हूँ वो मेल भी बड़ा असरकारक हो पाएगा। फिर से धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। Hello. Yeah, I'd like to have all the ICA board members come on this side of the stage, please. Thank you so much, Mittal. बहुत shukriya. That was very inspiring. And we invite Reshma on behalf of Indians for Collective Action to give her the honor. We also like to join Maulik and Kiara. Please come to the stage, yes. Join her on the stage. Maulik. Family of
Mittal. And Kiara, please come. What can I say after this? I think the few people I spoke with, I told you how inspiring and how wonderful this whole experience has been, having her here and Prakash telling us all the stories about going. I encourage you all to go and visit her and see what she's doing in person. Today, Aika would like to honor you, and you know, she's the founder of VSSM, and we present this for your tireless effort in saving our earth and for empowering communities through life-giving acts of water conservation and planting and helping our earth, nurturing it and greening it one tree at a time. Thank you so much. This is wonderful. Charlie? We hope you'll come again, and we hope that a lot of the people here would visit you and enjoy what you're doing and be inspired by this. Thank you. Raj. I would now like to call Raj Shah to the stage. He did a fundraiser for VSSM yesterday, and we'd like you to shake her hand. I thought you were bringing the check. Raj? I have some checks. He has some checks. So Raj, thank you very much for what you did yesterday. Well, we were privileged to be able to host you last few nights at our home. You are a unique individual. It's a blessing to be able to meet you and learn from you. You know, so we had a very small fundraiser at our home. Actually, it wasn't a fundraiser. We just invited a few friends to get to know her. But they were generous. We've collected about $15,000, and I'm topping it up to make it $20,000 for you. And there's one thing I wanted to tell you. This is not only in Gujarat that this nomad community lives. It lives in every state of India, right? Yeah. And in North India. And we have to do something to help these people, just like she has done in Gujarat. And she'll be more than happy to move to the other states, but we need money, we need people, we need the youngsters who are here to be inspired and do something like this, right? Thank you. Thank you again. Let's give a Thank big you round all. of applause to Mittal and her family.